ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. مستقبل کی فکر شاید یہ ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے. اسٹوڈنٹ سے آپ سوال کریں تو وہ یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ میں کیا کروں گا, میں کس کیریئر کو پرسو کروں, میں کس سبجیکٹ کو چوز کروں, میں کیا کروں. اسی طرح کیریئر میں بہت سے لوگ جو کہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہجرت کی بات کرتے ہوئے کہ برکت ہے اس میں, سوچتے ہیں کہاں جانا چاہیے, کس ملک جانا چاہیے یا کس پروفیشن کو چوز کرنا چاہیے. یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی ڈیسیجن آپ نے لینا ہو تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. اور پھر ظاہر ہے اس میں ایکسپرٹس کے پاس لوگ جاتے ہیں اکثر کہ میرے ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں, لکیریں کیا کہتی ہیں, میرے ستارے کیا کہتے ہیں. وہ جو ایک نمبر کی گیم ہوتی ہے نا, نیومرولوجی, جو کہ آپ کے ذرا آپ کا نام, آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, اس سب سے وہ جو ایک نمبر بن رہا ہوتا ہے, اس سے بھی چیزیں خاصیت کلیئر ہو رہی ہوتی ہیں. آج بڑا انٹرسٹنگ سا سیگمنٹ ہے اور آج ہم شعیب کی قسمت کا حال جاننے کی کوشش کریں گے. سب کے سامنے ہے میری قسمت کا حال. اٹس اوکے, آئی تھنک اٹس فائن, اس میں ایسی کیا بات ہے, اب جو ہے جو ہے الحمدللہ. الحمدللہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی زبردست شخصیت کے مالک ہیں طارق محمود شیخ صاحب. ایک تو واقعن کا بھی ہمارا کنیکشن ہے, دوسرا ہے کہ اسلام آباد میں کئی سالوں سے ماشاءاللہ وہ بہت سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے تو فوراً سے پوچھا کہ زیادہ سوال کیا ہوتے ہیں جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نا, ذرا آپ سمجھ گئے کہ مرد تو فوراً شادی سے متعلق سوال کر رہے ہوتے ہیں. لیٹس ویلکم ہم. طارق صاحب السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام. الحمدللہ. گریٹ. طارق صاحب یہ آپ کے اندر خود شوق کیسے ڈیولپ ہو, کیونکہ ظاہر دیکھیں پورا ایک علم ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور ٹھیک ٹھاک پڑھنا ہے, پامسٹری بھی, نیمرولوجی بھی, ایسٹرالوجی بھی. جی یہ میرے میں تقریباً 25 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے پامسٹری کرتے ہوئے, تو لاکھوں کروڑوں ہاتھ دیکھ چکا ہوں الحمدللہ. اور الحمدللہ رزلٹ بھی میرے, لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, کہ کافی اچھے ہیں. تو زیادہ تر کیا کیوریز آپ کے پاس آتی ہیں؟ کیا واقعی جو ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے شادی سے ریلیٹڈ زیادہ سوالات ہوتے ہیں؟ شادی ہو گئی, محبت ہو گئی, فائنینس ہو گیا, کاروبار ہو گیا, ملک سے باہر کے سفر ہو گئے, امیگریشن ہو گیا. اوکے. طارق صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ لکیریں بدلتی بھی ہیں, کیا درست بات ہے؟ اور اگر بدلتی ہیں تو کتنے عرصے بعد بدلتی ہیں؟ بیسک لائنز آر ناٹ چینج. ٹھیک ہے, جو آپ کی نیچر ہے وہ رہے گی. اوکے. چاہے جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر لائنز پہ جو باکسز, کراسز, ٹرائی اینگل اور کٹ آتے ہیں, اس سے اس کے میننگ چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی اسپیسیفک ٹائم اباؤٹ, میں جو مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو 6 سے 9 ماہ کے بعد آپ ایک دفعہ پھر سے ریویو کروا لیا کریں. اوکے. کیا ہاتھوں کی لکیروں میں مستقبل زیادہ نظر آتا ہے یا کہ ماضی؟ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ماضی بھی, حال بھی, مستقبل بھی. جی. اوکے. اچھا, کتنی زندگیاں آپ نے بدلتی ہوئی دیکھی ہیں کہ لوگ آپ کے پاس, بیکاز اٹس بین 25 ایئرس, اور تو کوئی ایک ایسا کیس جو کہ آپ کے سامنے ہو جو آپ سب کو بتا سکتے ہیں؟ ایک کیس آیا تھا, وہ لڑکا تھا اسی طرح, وہ بھی جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں وہ ریڈیو کے اوپر کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ امیر کبیر آدمی تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسا اس کے ساتھ واقعہ ہوا کہ اس کی ساری دولت ختم ہو گئی. اوکے. نقصان ہو گیا. مینس کہ میں ہمیشہ دوسروں کو منع کرتا ہوں کہ فائنینس کے حوالے سے, اپنے گھر کے حوالے سے کسی دوسرے پہ ٹرسٹ مت کریں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹرسٹ ہے نا, یہ لے ڈوبتا ہے انسان. آئی تھنک میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسی سجیشن, کوئی بھی ایسا اوپینین جو بھی آپ کی دانست کے مطابق, آپ کے علم کے مطابق ہے اور آپ کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں, ظاہر ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر جاننے والے. بالکل. اب علم ہے, اگر آپ اس کے تھرو اپنی زندگیاں بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ بتا دیں کہ جی کوئی ایسا معاملہ آپ کی بزنس میں ہو سکتا ہے, احتیاط کریں, اور آپ واقعی احتیاط کر کے بچ جاتے ہیں اس سے, تو یہی میں بتا رہا تھا کہ وہ لڑکا میرے پاس آیا, میں نے اس کا ہاتھ دیکھا, سارا اسٹیمیٹ کیا, میں نے اس سے پوچھا کہ تم کوئی غلط کام تو نہیں کرنے جا رہے؟ اس نے کہا بالکل میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. میں نے کہا ہرگز نہ کرنا, تمہارا آنے والا مستقبل بہت روشن ہے, اور اس رب سے معافی مانگو اور نماز پڑھو. ماشاءاللہ. اب دیکھیں, اور الحمدللہ کچھ عرصے بعد وہ آیا ہے میرے پاس,
और उसने कहा कि सर यू आर ग्रेट। जबरदस्त। सो जो बिलीव करता है वो करे, जो नहीं करता कोई जबरदस्ती किसी के बट ऊपर डू नॉट है नहीं। डिसरिस्पेक्ट समवन। Exactly. बिलीफ आपका सिर्फ अल्लाह अपने पे रब अल्लाह पे के होना ऊपर है, चाहिए, एग्जैक्टली। और हमारी हैसियत एक इल्म की है, बिल्कुल। हम आगे उसको अच्छे वे में दे रहे और हैं वो इल्म किसी जो को। अल्लाह ने दिया हुआ है, जी, ये भी है बिल्कुल ऐसे कि ही वो है। बेहतर जानता है सारी चीज़ों को और सारी हिकमत उसके पास है। अब ज़रा जी आज शुएब की किस्मत का हाल हम जानने की मेरी कोशिश personal life में क्यों करेंगे। सामने कुछ डिटेल्स जो है वी रिक्वेस्ट यू ना तो हमने तारिक साहब होला हाथ रखना, देखें तो ऐसी वैसी बात तो मुझे बाद में बतानी है प्लीज वहाँ चले आपने। जाएं, सामने पीले सोफे पे चले जाएं और अब पता चलता है कि जी आपकी किस्मत, आपकी हाथों की तो लकीरें मेरे क्या मेरी कहती किस्मत हैं। मेरे दाएं हाथ में कि बाएं हाथ आप में? पूछना क्या चाहते हैं? दोनों कुछ हाथों में। जेनेरिक पूछना चाहते हैं या बीच में कुछ सवाल करूंगा ना, बीच सवाल में। करेंगे? जी, चलें ठीक है जी, बॉल पेन का। ये लीजिए। जबरदस्त। लेट्स सी कि अभी क्या रिजल्ट निकल रिजल्ट्स आते हैं। ताकि वैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड दिस पामिस्ट्री, तीनों में से ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगता है तीनों 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 मजे के हैं। ओके। और ज्यादा इंफॉर्मेशन किस में होती है? पामिस्ट्री में, और अपना इल्म कन्वर्ट कर रहा हूँ आगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर बड़ी ये अच्छी वैसे बात बहुत है। बड़ी बात है, बिकॉज हमने अक्सर देखा है कि जिसके पास ये इल्म होता है वो कहते हैं ये हमारे पास रहे और सारी अटेंशन ऑब्वियसली, बट हर किसी की मर्जी ज़रूर है, बट ये बड़ी अच्छी बात है कि आप दूसरों को भी सिखाएं, बिकॉज बिल्कुल हर ऐसे तरफ ही है। अवेलेबिलिटी भी नहीं होती सो मैं experts बता दूं की। कि वो लिख क्या रहे हैं, मैंने उनको कुछ पर्सनल डिटेल्स पहले से लिख कर दे दी हैं, जिसमें मेरा नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है और वालिदा का नाम डेट है। ऑफ बर्थ क्या है? 17 दिसंबर। आपने डेट ऑफ बर्थ पूछी, मैंने बता दी। हाँ हाँ, डेट ऑफ अब आगे नहीं चलना। आगे नहीं चला, सवाल किया तो जवाब Date दे of दिया। year। तो प्लीज आपने मुझे विश करना 17 दिसंबर sorry, मैं कह रही हूँ date of year क्या है? आपने मेरे मुझे जो दिमाग सवाल check किया करें बाजी फिलहाल। मैंने वो जवाब दे दिया है। मैंने बात सवाल ही खत्म। गलत किया है। ये मेरा मसला नहीं था, आप सवाल ठीक करना था ना मुझसे फिर। अच्छा, इसी तरह तुम एक दफा ऐसे सबसे हुआ- पहले पूछ लेती हाँ, एक दफा कि- ऐसे हुआ कि फुल बताना। हाँ, हालांकि पता है इसको 30 का यूं। एक दफा ऐसे हुआ कि आई वाज विद समवन, और इस तरह बैंक्स में आपने जब कॉल करनी होती है वो डिटेल्स पूछते हैं ना, तो वेरीफाई करने के लिए जब एक्सेस करना होता है अकाउंट। अब मैं ना बताना नहीं चाह रहा था अपना ईयर ऑफ बर्थ ना, तो उसने मुझसे पूछा जी शुएब साहब आप बहुत क्या तुम लकी 12 आदमी। दिसंबर कहती है, ईयर भी बताए ना। मैं बहुत लकी हूँ जी, मुझे ये चलिए जी, सबसे जी, पहले आ तारिक गया साहब। जी, ये तो मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। जी, लकी नंबर 1 है, 1, क्या बात है, नंबर 1, लकी डे जुम्मा है, बिल्कुल ठीक है, बेड आइज है, सदका खैरात किया करें। बिल्कुल ठीक है। बुरी नज़र से बचें जी, और अल्लाह मुझे हर बुरी नज़र से महफूज रखे। से माशाल्लाह। इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आमीन आमीन। लकी कलर सफ़ेद, आसमानी, ग्रे और ब्राउन है। ब्राउन मैं बस कभी नहीं पहनता, मुझे ब्राउन आई डोंट You नो, don't like आई डोंट brown? वियर ब्राउन, आई डोंट लाइक ब्राउन। बट पहन के देखना। ओके। इंशाल्लाह। चीज़ें से सफ़ेद, पसंद ग्रे और ब्लू तो मुझे बाकी बहुत पसंद है, आसमानी, और सही। ब्राउन चॉकलेट पसंद है, खा लेता हूँ, पहनता नहीं हूँ कॉलर। और लकी स्टोन जो है आपका है पुकराज येलो सफायर, 7 to 8 कैरेट का पहने, ठीक है। Sapphire? यस, और ब्लू सफायर, ओके। नीला, मुझे कभी किसी ने कहा था कि मरजान पहने, मैंने मरजान पहना भी हुआ है। मरजान भी पहने, वो भी बहुत अच्छा है। 7 to 8 और कैरेट। अकीक कैसे मेरे लिए? अकीक तो हर मुसलमान पहन सकता है। बिल्कुल ठीक है, मुझे अकीक और मरजान का चूंकि था तो मैंने जी, ये दोनों पहने। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमरोलॉजिकल ठीक है जी। एस्टीमेट। ठीक है, अब हाथ की तरफ आते हैं। सेंसिटिव आदमी है, ओ वेरी सेंसिटिव। हसास, छोटी छोटी बातें महसूस करते हैं, ओहो, ये तो पहली बात ही दुरुस्त साबित हुई है। जिद्दी आदमी है, हुक्म चलाने वाली तबीयत है, फर्स्ट विजन में जिसको देखते हैं और जो कुछ कहते हैं एब्सोल्युटली राइट, डबल माइंडेड है, मुल्क से बाहर का सफ़र मौजूद है, और लाइफ लाइन के ऊपर फिश है, यानी जिसे हम मंजरेखा कहते वो हैं। क्या कहते, वो फिश क्या कहती है? सक्सेस, सक्सेस। सक्सेस और इन जब- लाइफ, इज्जत, दौलत माशाल्लाह। और कामयाबी। और जो बाहर की बात आपने की है, वो ऑन एंड ऑफ वाला चक्कर है, बाहर घूमना नहीं, फिरना। नहीं, इमिग्रेशन साइन है। ओके। ओह
You're planning ना, एक्चुअली आपको पता ही है 3-4 मुल्कों के साथ चल रही हैं डील्स है मेरी। ना? Sure. चिकनाई चीनी नहीं खानी। हाँ वैसे वालदैन में से किसी को हार्ट या शुगर का प्रॉब्लम है। या है। ठीक है, मैरी के हिसाब से आपको बता दूं, शादी कब होनी है मेरी? हाँ 25 से 30 के दरमियान, साल? बिल्कुल 30-32 इसी तरह ही है। और अगर कहीं बात चल रही है, हाँ। क्योंकि आपकी जो शादी की लकीर है ओवरलैप है, वो क्या मतलब कि कहीं पे बात चलती रहेगी हम्म लेकिन कोई फैसला नहीं होगा, लेकिन फिर अचानक ही आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, ओके। और आपके बच्चे 2 बेटे 1 बेटी या 1 बेटा 2 बेटियां हैं। लाइफ में हर जगह आपके 1 से 2 दुश्मन रहेंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ, चाहे वो आपके ख़ानदान में हो, चाहे जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे हो। जहाँ जाऊँगा एक आधा दुश्मन रहेगा मेरा। नहीं वो नहीं है। मैंने पहले हाथ खड़ा किया मैं। अच्छा जी, सनलाइन बनी हुई है, शोहरत आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और अभी आनी है ना? इंशाल्लाह अभी आनी है, कंफर्म कर रहा था। बिल्कुल आनी। ओके, और अच्छी शोहरत ही आनी है ना? अच्छी शोहरत अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरी है। अच्छा 35 में थोड़ा सा चेंज आएगा लाइफ स्पैन में, ये सोर्स ऑफ इनकम में, लेकिन बहुत अच्छा चेंज है। 2035 में 2035 में 2035 नहीं, जिस वक्त आपकी एज अच्छा 35 होगी। अच्छा मैं इधर से आपकी एज कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 35 में you took a decision ना? तो 35 It was अच्छा, ओके। 12 हाँ ठीक है, वैसे सही बात है, 35 में चेंज मैं आया यही था। तो मैं बता रही हूँ कि it was a he तारिक साहब he's 38 right now. यस मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी। मैंने बता रही हूँ कि वो अगर मेरा पर्दा रख रहे तुम तो रख लो। नहीं वो ठीक बताएंगे ना फिर उस लिहाज से। नहीं मैं नहीं कैलकुलेशन 35 कर आपने चुका बहुत अच्छी कैलकुलेशन की, क्योंकि 35 में ही took a decision ना, तो वो जो आप चेंज बता रहे हैं ना वो आया चेंज। हूँ। लेकिन ये मजीद बेहतर होता जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, टोल्ड यू। थैंक यू ब्रो। बाकी आपका जेप्यूटर माउंट अच्छा है, आपका सैटर्न माउंट भी ठीक है। जुपिटर माउंट से क्या मतलब होता है? जेप्यूटर माउंट जो होता है ना, वो हुकूमत, हाकमियत और बहादुरी की अलामत होता है। ठीक है, ठीक है। सैटर्न माउंट जो होता है आपकी दूरअंदेशी की तरफ ठीक है। करता है। सन माउंट ये जो आपकी शोहरत है, चमके हुए हैं माशाल्लाह। और मरकरी माउंट बिजनेस के हवाले से। अच्छा, आपके मरकरी माउंट पे 3 लकीरें भी मौजूद हैं। अगर डॉक्टर होते तो बहुत अच्छे डॉक्टर होते, डॉक्टर नहीं हो तो दैट मीन्स कि गरीबों के लिए ख़ास जगह है दिल में। मैदे का या लीवर, फैटी लीवर हो सकता है, केयर करनी है। ठीक, मैं देखा तो ठीक है। दस का मस्का खराब रहता ही है। अच्छा, ये जो हैं आपके रिंग किंग्स कहलाते हैं। ठीक है, बादशाही कंगन होते हैं। Here are 3 rings. Every ring is about 25 years. That means 75 आपकी एज है। बस कहती है बस, और तूने क्या, मैं डायनासोर के साथ नहीं 75 साल खेलना है? आधे तो मैं 75 आधे से ज्यादा above तुम्हें ही। अब गुजार- है ना, 3 रिंग्स पूरे होने हैं ना, मतलब इंशाल्लाह। 20-25 साल रह गए बस। शेफे से ये बड़ी नहीं, anxiety है। डीपली सोचते हो हर चीज़ को, और माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड ऑन योर एंड। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसे ही खूबसूरत हाथ रखे। आमीन। एक ज़रा अंदर की बात है, वो मैं इधर पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ओके, ओके दैट वुड बी इन द ब्रेक। कान में बताएंगे। जी, जितनी बहुत जिंदगी अभी आपने देखी, इसमें जितने इयर्स आपने spend- स्ट्रगल लाजमी है आपकी लाइफ में। आगे अभी भी अभी तो तुम कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे शुएब। तुम्हें क्या पता? ओके आई मीन
अच्छा स्ट्रगल प्रोफेशनली तो स्ट्रगल नहीं होती ना, आप हाँ, मतलब some अपने में personal बाज़ life औक़ात में भी आप struggle अपनी होती है ना। थॉट्स में भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना जी, कि वो अलाइन जी, नहीं जी। होती या हैं। मे भी देखें इसमें जो उन्होंने बात की ना, वाक एंड से यहाँ पे आना ये स्ट्रगल में आई मीन स्ट्रगल होती है, प्लस वो जो उन्होंने बात की ना शादी वाली भी 25 से 30 हज़ार उसमें पता है उनको शादी उसमें ही हुई है। दूसरी बात ये है कि हम अक्सर ये कहते हैं ना कि उसमें जो माजी जो नज़र आ रहा होता है, क्या इसमें ये अगर मैं सवाल रखूं आपके सामने, व्हाट वाज द मोस्ट टफेस्ट ईयर, वो मेरे एज ब्रैकेट में कौन सा टफेस्ट टाइम था, वो क्या इसमें नज़र आता है? 25 से 31 के दरमियान। वाकई इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। मजीद नहीं पूछना, इधर आ जाते हैं। नहीं वाकई हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, Really? या ओके चलें जी, ज़बरदस्त। आई थिंक एक वैसे हमने आपको डेमो ज़रूर दिया है। और आप यकीन करें बाकी सारी बातें भी अपनी जगह, लेकिन स्पेशली वो जो आपने मैदे की बात की ना, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा इसी तरह मैंने दिखाया था, मुझे तब भी ये कहा गया, तो ये बहुत बड़ा इशू है एक हेल्थ का, अल्लाह सबको सेहत दे। सो वो वाकई चीज़ें होती हैं, अल्लाह महफूज रखे सबको। आप कुछ सवाल करना चाहती हैं? मैं अच्छा, एक दफ़ा एक खातून, बल्कि 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है, खातून 3 बच्चों की माँ मेरे पास रोती हुई आई। अच्छा, बहुत परेशान थी, उनको किसी ने कह दिया था कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कम है, और उनकी लाइफ लाइन छोटी थी, उस वजह से किसी ने उनको वहम में मुब्तला कर दिया। याद रखें, किसी भी ऐसे जो चलते फिरते लोग हैं या गलत किस्म के जो भेड़े हैं इस पामिस्ट्री की लाइन में, कभी भी उनको हाथ ना दिखाएं, वरना वो आपको वहम में मुब्तला कर देंगे। और यकीन करें कि जब वो वहम आपके जहन में बैठ जाएगा, वो लकीर ऑटोमेटिकली आपकी हथेली पे बन जाएगी। अच्छा, ये फ़र्क होता है? बिल्कुल होता है। Okay. आप एक चीज़ के बारे में थिंक करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो वो आपकी हथेली पे आ जाती अच्छा, है। ये जो फिर एक बात होती है ना कि अगर जो आप किसी सही एक्सपर्ट को अगर दिखा रहे हैं, तो वो अगर आपको बता दें कि नहीं आपकी ज़िंदगी में ये डिसीजन है, आपको नहीं लेना चाहिए, मतलब आपकी लकीर में वो है, और उसके बाद अब वो डिसीजन ना लें, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो लकीरें इस तरह से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं जी, कि अल्लाह ने आपको एक पावर दी हुई है, जी, अपनी बिल्कुल। ज़िंदगी पे अल्लाह ने आपको अल्लाह इख्तियार ने दिया हुआ है। आपको इख्तियार दिया हुआ है, बेशक। लेकिन खुद मुख्तार नहीं मुख्तार ही बनाया। अच्छा तारिक साहब, थोड़ा सा अब हम आते हैं पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर है देखें उसके आदत पे भी हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब जितना 2026 रह गया, आइंदा आने वाले कुछ साल अगर थोड़ा सा बताएं कि हम अक्सर उस पर बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट को, पामिस्ट को सुन रहे होते हैं, उससे जी, मुताबिक बात करते हैं। 2026 से 28 के दरमियान बिग रेवोल्यूशन है पाकिस्तान में, ओके, और किस्मत बदलने जा रही है पाकिस्तान की, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान दुनिया की ज़िंदगी, ये दुनिया की सतह पर बहुत अच्छे नाम से उभरे, इंशाल्लाह। और माशाल्लाह पाकिस्तान की वैसे भी बहुत सारी पजीराई हुई है। बेशक। सबसे बड़ी बात ये कि खाना काबा सऊदी अरब की हिफाजत का हमें बेशक शर्फ मिला है। शर्फ मिल चुका है, बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों की हमारे ऊपर ये एक ज़िम्मेदारी है कि हम सब की हिफाजत करें, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि उनका कुछ ख्याल करें। वो बहुत बुरी और अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार। अल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करे। सब कोई भी ऐसा है जिस पर जुल्म ढाया जा रहा है, तो उसके लिए हमारी तरफ से ज़ाहिर है बहुत सारी दुआएं भी हैं। और वो जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात है, जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा अमन पसंद मुल्क हम रहे हैं, हमेशा आगे भी रहेंगे, और जो पाकिस्तान की अमन की कोशिशें हैं, इसको वाकई पूरी दुनिया में पजीराई भी मिल रही है, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात है कि जब आप हक और सच पे होते हैं, तो फिर जाहिर है वो पूरी दुनिया को दिखता भी है कि खत्ते में किस तरह से, दुनिया में किस तरह से अमन लाया जा सकता है। बेशक तो इस बारे से हम सब दुआगो भी हैं कि पाकिस्तान वाकई बहुत इससे ज़्यादा तरक्की करे, और हम सब की दुआएं जो हैं वो अपने मुल्क के साथ है। तारिक साहब,
ایک چھوٹا سا سوال بس اور تھا کہ کیونکہ آپ سبین کے نام پہ بھی آپ نے کہا نا کہ نقطے ہیں، میرے نام پہ بھی آپ نے نقطوں کی بات کی، تو آئی ریممبر کہ اسی طرح ہماری فیملی میں ایک بچہ تھا تو بیمار رہتا تھا، ڈاکٹر نے اسے یعنی کسی سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا نام بدل دیں اور وہ نام رکھیں جس میں نقطے زیادہ ہوں. سو نقطوں کی کیا کہانی ہوتی ہے نام میں نقطوں کا ہونا؟ دیکھیں جی یہ کوڈز ہوتے ہیں، اوکے ٹھیک ہے نا، تو اگر کوڈز اپنی جگہ پہ فٹ بیٹھ جائیں تو پرابلمس ختم، ٹھیک ہے. اوکے تو کوشش کریں کہ نقطے کم سے کم ہوں نام میں. اچھا ہاں آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے جو بھی نام رکھیں نقطے کم ہاں میرے رکھیں دونوں اس بچوں کے میں. ناموں میں نقطے نہیں ہیں. نائس، زبردست، یہ تو بڑی انفارمیشن تھی. طاہر صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ. اٹس سو گریٹ ٹو ہیو یو، ماشاء اللہ آپ نے وقت نکالا ہمارے بس لیے. میں آخری ورڈز کہنا پلیز چاہوں گا پلیز. کہ اپنے سے غریب لوگوں کا خیال کریں اور کوشش کریں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. بہت پیاری بات. میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی جناب سے سب کو دے، لیکن مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، یہ ہم لوگوں کا فرض ہے. جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ مدد کرے. بے شک کرے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کبھی کبھی ہم یہ ذکر ضرور کرتے ہیں نا کہ دے کر بھی آزمایا جاتا ہے اور لے کر بھی آزمایا جاتا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی آزمائش ہے اور اگر نہیں ہے تو بھی اور آزمائش اگر ہے. آپ کا دینے والا ہاتھ ہے تو اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا. دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ سوچیں صرف کتنا اچھا انسان کو خود بھی فیل ہوتا ہے کہ آپ ذریعہ ہیں. تو یہ کسی کو کچھ بھی دینے کا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے. اور یہ احساس کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، سب سے بڑی بات. اور سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا احساس کریں. باہر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن رشتہ داروں سے بعض اوقات کانفلکٹس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی اچھا وہ نہیں ہے تو ہم کیوں پوچھیں اس کو، یا ہمارا اس سے کوئی اختلاف ہے تو ہم شاید منہ بھی موڑ لیتے ہیں اور ایک دفعہ دوبارہ مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں، کیونکہ آپ پر سب سے پہلا فرض جو ہے وہ آپ کے رشتہ داروں پہ آتا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ طاہر صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے.